عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں. فریاد لے کر آئے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ سرکار بڑا گمبھیر معاملہ ہے, بہت بھیانک فریاد لے کر کے میرے آقا آیا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تو تم کون سا فریاد لے کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بھیانک فریاد میرے سرکار یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں کفن چور تھا, میں سرکار کفن چرایا کرتا تھا. اگلے زمانے میں جب کپڑوں کی کمی ہوتی تھی تو لوگ کفن چرایا کرتے تھے اور کفن کی چوری کرتے تھے, لے جاتے تھے بازاروں میں بیچتے تھے اور اسی سے وہ کامیابی حاصل کرتے تھے روزی کے لیے. چنانچہ کہتے تھے کہ ہم نے بہت روزی حاصل کر لی, میں بہت بڑا کامیاب ہو گیا. کفن کا چرانا بھی وہ اپنے لیے بہت ہی باعث عزت معاذ اللہ سمجھا کرتے تھے. نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کفن چور تھا, میں کفن کی چوری کیا کرتا تھا. یا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے محلہ میں انصار خاندان سے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور لوگ اس کو دفن کر کے یا رسول اللہ آئے. جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنے ہتھیار کو لیا اور رات کی تاریکی میں یا رسول اللہ میں نکل گیا اور نکلنے کے بعد سرکار میں قبرستان پہنچا. قبر تازہ تازہ تھی, میں نے ساری مٹی کو ہٹا دیا. یا رسول اللہ مٹی ہٹانے کے بعد جیسے میں نے اس کے جسم سے کپڑے کو اتارا اور لے کر کے چلنے لگا یا رسول اللہ اب یہی وہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں, ان کی زبان کانپنے لگتی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اور آگے بتاؤ. عرض کرتے یا رسول اللہ اب جو جرم میں نے کیا سرکار وہ بتاتے ہوئے زبان کانپ رہی ہے. یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہوئی سرکار کہ مجھ کو شیطان نے دھوکہ دے دیا اور یا رسول اللہ میں قبر میں پھر اتر گیا. یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا. یا رسول اللہ تب تک غیب سے آواز آئی کہ نادان تو نے مجھے ناپاک کر دیا. اتنا سننا تھا کہ اللہ کے حبیب اپنے چہرے نبوت کو پھیر لیتے ہیں اور فرماتے ہٹاؤ اس کو سامنے سے ہٹاؤ. اتنا سننا تھا. عرض کرتے یا رسول اللہ اب ہٹ جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ یا رسول اللہ دروازے رسول چھوڑ کر کے پناہ کہاں پاؤں گا؟ یا رسول اللہ یہ میرا جرم تھا, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اے میرے سرکار میں اپنے جرم کی سزا آپ کی دربار میں مانگنے کے لیے تیار ہوں. یا رسول اللہ جو سزا اس پر متعین کی جائے یہ میرے آقا میں سہنے کے لیے تیار ہوں. آنسو گر رہے ہیں. نوجوان روتا چلا جا رہا ہے. ایک دن کا عرصہ گزر گیا, 2 دن کا عرصہ گزر گیا, 3 دن کا عرصہ گزر گیا, 4 دن کا عرصہ گزر گیا. نوجوان روتا چلا جا رہا ہے اور رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا چلا جا رہا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود. تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود. یا رسول اللہ معافی کا پروانہ یہاں نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگاہ نبوت اس کی طرف اٹھاتے نہیں ہیں. راوی کا بیان ہے کہ 40 دن کا عرصہ گزر گیا. وہ نوجوان آنسو پر آنسو بہائے چلا جا رہا ہے اور دربار رسول سے ہٹ نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بارگاہ رسالت میں بھیجا. اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو آیت کریمہ پڑھ کر سنا دو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو. اور اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ عرض کر دو میری طرف سے پیغام پہنچا دو جبریل میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا. اور میرے محبوب کو بتا دو کہ میرا بندہ جب رو رو کر کے معافی مانگتا ہے تو یہ محبوب بخشنے والا میں ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر آئے اور پیغام پر پہنچاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو. اور یا رسول اللہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو بخشنے والا میں ہوں. اتنا سننا تھا میرے سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو مغفرت کا کی بشارت سناتے ہیں اور فرماتے ہیں نوجوان جا, رب کا پیغام تیرے لیے میرے وسیلے سے آ گیا, تیری خطا معاف کر دی گئی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا, گویا اس نے خطا نہیں کی. خدا کی قسم گناہوں سے توبہ کرنے والوں کی فہرست اگر سامنے رکھی جائے تو جن جن لوگوں نے اپنے خطاؤں سے معافی مانگی ہے اور خلوص دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے, فتح و کامرانی کی کتنی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں. تاریخ اس کے لیے شاہد ہے اور تاریخ کے اوراق اس کے لیے گواہ ہیں. ملاحظہ کرو, واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. آج حضرت فضیل بن عیاض کو کون نہیں جانتا؟ یہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عظیم الشان ولی ہیں کہ ولیوں کے سردار کہے جاتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض سلسلے قادریہ کے 5ویں ولی وہ ہیں جو سرکار غوث اعظم سے 5 سلسلہ
ऊपर पाए जा रहे हैं वो हजरत फुजैल बिन अयाद रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत फुजैल बिन अयाद की पहली जिंदगी बड़ी अजीब व गरीब थी। हजरत फुजैल बिन अयाद बहुत भारी डाकू थे, इतने बड़े डकैत थे, इतने बड़े डकैत थे कि कोई भी तिजारती काफिला जिस रास्ते में वो रहते थे उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था जिस पर वो डाका न डाल दिया करते हों। एक मरतबा यही हजरत फुजैल बिन अयाद डाका डाल करके और गए दरिया के किनारे बैठकर कुरान की तिलावत करने लगे। तब तक ताजिरों का सरदार जो था उसने एक डाकू से पूछा, ये तो बताओ कि तुम्हारे सरदार कहां चले गए? उसने कहा, हमारे सरदार दरिया के किनारे गए हैं, रोजा से हैं, वो रोजा अफ्तार कर लेंगे तब वापस आएंगे। ताजिरों का सरदार चौंक पड़ा, या अल्लाह, ये कैसा डाकुओं का सरदार पाया जा रहा है कि जो इतना बड़ा डकैती का गुनाह करके और रोजे से है। चुनांचे उसने कहा, देखो हमारे सरदार को छेड़ना नहीं। लेकिन ताजिरों का सरदार वहां पहुंच गया, देख क्या रहा है कि फुजैल बिन अयाद दरिया के किनारे वजू कर रहे हैं। वजू करके वो नमाज अदा किए और नमाज अदा करने के बाद उन्होंने कुरान को खोल लिया और कुरान की तिलावत करने लगे। ताजिरों का सरदार खड़ा हो जाता है। फुजैल बिन अयाद ने निगाह उठाई, पूछा कैसे आए हो? कहा, यह सब वर्ज में बात नहीं आ रही है कि आप इतने बड़े डाकू हैं और इतने बड़े आबिदो जाहिद भी दिखाई दे रहे हैं। तब तक पीछे से दूसरे डाकू ने कहा, हमारे सरदार से बात ना करो, ये रोजा है, जब ये अफ्तार कर लेंगे तब इनसे बात करना। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये रोजा रह रहा है, ये कुरान की तिलावत कर रहा है, ये नमाज अदा कर रहा है और ये डकैती कर रहा है। तब तक हजरत फुजैल बिन अयाद ने कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत कर दी जिसका मफहूम यह है कि नेकियां बुराइयों को खा जाया करती हैं, मिटा दिया करती है नेकियां बुराइयों को। क्या ये तुम्हें मालूम नहीं है? ताजरों का सरदार वहां से हट गया, वो हजरत फुजैल बिन अयाद हैं। हजरत फुजैल बिन अयाद इतने पाबंद नमाज के थे, इतने पाबंद नमाज के थे। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो नमाज छोड़ बैठे हो और देखने के बाद मस्जिद में कभी हफ्ता में जाते हो तो मुसलमान मालूम होते हो और जब मस्जिद से बाहर आते हो तो पता ही नहीं चलता आप मुसलमान हो कि आपका तशख़्ख़ुस क्या है, आपको किस घटघरे में खड़ा किया जाए। जो कौम अपनी अलामत को दुनिया में बदल चुकी हो। और मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। ये उलमा की जमात मौजूद है, मैं खुल करके ऐलान कर रहा हूं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिर किस मौका पर मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया था कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है। आज तुम दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार किन किन मामलों में किए हो, जरा अपने तर्ज जिंदगी को देखो। तुम्हारा घर है तो दूसरे कौम की तरह है, तुम्हारा लिबास है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा चेहरा है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा चलना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा बैठना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा खाना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा पीना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा सोना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा जागना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा माहौल है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा तमद्दुन है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारे मुआशियाती और इक्तिसादी हालात है तो दूसरी कौम की तरह है। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है। फिर भी तुम कहते हो हम मारे जा रहे हैं, फिर भी कहते हो हम सताए जा रहे हैं, फिर भी कहते हो हम परेशानी में मुब्तला किए गए हैं, फिर कहते हो कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। लूट लिया इन दज्जालों ने इस्लाम के वसूल को और बर्बाद कर डाला इन बेईमानों ने इस्लाम के माहौल को दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार करके। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो इसी में से है। तुम्हें अब भी नहीं शर्म आ रही है कि तुम अपनी शक्ल इस्लामी शक्ल बनाओ, तुम्हें अब भी नहीं शर्म आ रही है कि तुम अपना माहौल इस्लामी माहौल बनाओ। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। जरा देखते चलो हजरत फुजैल बिन अयाद ने अलामत को इख्तियार कर लिया है तो ये अलामत किसी न किसी दिन काम आ जा रही है। हजरत फुजैल बिन अयाद डकैत तो जरूर हैं, पापी तो जरूर हैं, चोर तो जरूर हैं, सियाहकार तो जरूर हैं, बदकार तो जरूर हैं, लेकिन यही हजरत फुजैल बिन अयाद नमाज के इतने सख्त पाबंद हैं, इतने सख्त पाबंद हैं हजरत फुजैल बिन अयाद कि अपने पूरे साथियों को उन्होंने कह दिया था कि हमारे जितने साथी हैं अगर जमात से कोई नमाज पढ़ना छोड़ देगा तो मैं उसको अपनी जमात से निकाल दूंगा। या अल्लाह, ये चोरों की कैसी जमात है कि पाबंदी जमात की हो रही है, तब तुम हमारे साथ में रह सकते हो। जरा मुलाहजा तो करो फुजैल बिन अयाद की जिंदगी, लेकिन यही जमात की पाबंदी किस तरह से रंग लाग रही है ये भी जरा देखते चलो। यही फुजैल
फुजैल बिन अयाज हैं, एक पहाड़ की खोह में घात लगाए बैठे हुए हैं और एक तिजारती काफिला गुजर रहा है। उस तिजारती काफिला में एक कारी कुरान थे। आज भी कारी कुरान से मदद मांगी जा रही है और कल भी कारी कुरान से मदद मांगी जा रही थी। चुनांचे वो तिजारती काफिला जैसे उस पहाड़ की खोह में पहुंचा तो सब लोगों ने जान लिया कि हम तो उसी रास्ते पर आ गए हैं जिस रास्ते पर फुजैल बिन अयाज ठहरे हुए हैं चोरी करने के लिए। अब हमारा काफिला जा नहीं सकता है यहाँ से, फुजैल बिन अयाज लूट लेंगे, फुजैल बिन अयाज डाका डाल देंगे। फुजैल बिन अयाज ने कहा था कि देखो हम घात लगाए बैठे हुए हैं और जैसे हम यहाँ से हमला आवर होंगे तुम सबके सब फौरन हमला आवर हो जाना, लेकिन जब तक हमारी तलवार ना उठेगी तुम सबके सब अपनी तलवार को उठाना नहीं। हजरत फुजैल बिन अयाज घात लगाए बैठे हुए हैं और ये तिजारती काफिला रवा दवा चला जा रहा है। तिजारती काफिले के सरदार ने कहा कारी साहब जरा आप आगे बढ़िए। कहा क्यों? कहा कुरान की तिलावत करो। कहा किस लिए? कहा इसी रास्ते में फुजैल बिन अयाज डाकू रहता है, कुरान की तिलावत से मुमकिन है हम सब उसके डकैती से बच जाएं, इसलिए कि कुरान का वो बड़ा आशिक है, कुरान बहुत तिलावत करता रहता है। तो देखो पहले जमाने का दस्तूर ये था कि वो कुरान से अपने ऊपर आने वाली बलाओं और अपने ऊपर आने वाले फसादात को टलवाया करते थे और कुरान की बरकत को हासिल किया करते थे। वाकया सुनाना मकसद नहीं बल्कि बात बता देना चाहता हूं कि देखो गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में जो जलजला तुर्किस्तान में आया था, जर्मन के अखबार ने उसको छापा और उसका तर्जमा पाकिस्तान से उर्दू में किया गया, फिर हिंदुस्तान में वो मजमून छपा। उसका मजमून का मतलब यह है कि वो जलजला अगस्त में जो तुर्किस्तान में आया था किस बुनियाद पर आया था इसको भी बताता चलो प्यारे। तो बताया जाता है कि समुंदर के किनारे जो फौजी अड्डा था उस फौजी अड्डा के लोगों ने रक्स व सुरूद की एक महफिल मुनाकिद की और उसमें नाचने गाने वाली लड़कियों को बुलाया। जब वो लड़कियां आई नाचने गाने वाली और गाने नाचने लगी, शराब पी करके सब मस्त हुए, तो किसी ने कुरान का एक नुस्खा किसी शराबी फौजी को दे दिया। उसने कुरान को हाथ में लिया और नाचने वाली लड़कियों के पांव में माज़अल्लाह डाल दिया। उन लड़कियों ने उसको रौंद दिया और किसी ने कह दिया कि जब कुरान की हिफाजत रब ताला फरमा रहा है तो कहां है इस कुरान का नाजिल करने वाला। इतना जैसे उन जालिमों ने कहा तब तक समुंदर फटा, उसके अंदर से शोले निकले, वो सबके सब उसमें कहां गए जल करके खाकिस्तर हो गए, कुछ पता नहीं है। तुर्किस्तान में गुज़श्ता साल अगस्त में जो जलजला आया था, जो 2 लाख के मरने की इत्तला मिली थी पूरी दुनिया वालों को, वो समुंदरी इलाके से अलावा गिरदो नवाह के लोग मरे थे जो जद में आए थे। पता ये चला कि कुरान की बेहुरमती होती है तो जलजला आता है, कुरान को जब चैलेंज किया जाता है तो मुसीबतें नाज़िल होती है, कुरान की बेहतरानी जब होती है तो परेशानियां होती हैं। सुनो देखो देखो कुरान की बेहुरमती कहां कहां नहीं की गई है। क्या तुम्हारे हिंदुस्तान में कुरान की बेहुरमती नहीं की गई है? क्या हिंदुस्तान में कुरान को नहीं जलाया गया है? खुदा की कसम ये हिंदुस्तान तो वो हिंदुस्तान है, एक जलजला नहीं, न जाने कितने जलजलों के झटके इन्हें महसूस करने पड़ेंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत तुम्हारे लिए ज़हमत की दावत देती चली जा रही है। तुम बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद कहो हिंदुस्तान में हम फलाहो कामरानी की जिंदगी गुजार ले, नहीं गुजार सकते हो। उस शहादत का रंग जरूर जाहिर होगा, हुसैन आदम की शहादत का रंग आज सारी दुनिया में कयामत तक जाहिर रहेगा और बाबरी मस्जिद का शहादत का रंग भी पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में जाहिर रहेगा। मस्जिदों को शहीद करके तुम अमन अमान में रहना चाहते हो, मस्जिदों को तोड़ करके तुम कामरानी की मंजिलें देखना चाहते हो, मस्जिदों को शहीद करके जो हुकूमत करना चाहते हैं उसकी न हुकूमत चली है, न उसकी कयादत चली है, न उसकी सियासत चली है। हमारे मजहब इस्लाम में जहां भी फतह कामरानी के कदम चूमे गए थे और जहां जहां लोग गए थे फतह कामरानी के झंडा लहराते हुए, नबी कौनैन ने पहली पाबंदी लगाई थी कि किसी भी कौम की इबादत गाह को गिराया न जाए। जिस नबी ने सारी कौम के इबादत गाहों के गिराने की पाबंदी लगा दी हो उस नबी के उम्मतियों की मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। ऐसे ज़हन फिक्र रखने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यही फुजैल बिन अयाज हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और तलवार लेकर के बैठे हैं, तब तक कारी कुरान ने कुरान पढ़ना शुरू किया और जिस खोह के पास फुजैल बिन अयाज बैठे हुए थे जब कारी कुरान वहां से गुजरे तो वो गुजर रहे हैं और उनकी जबान पर यह आयत करीमा है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल जिक्र इलाही से लर्जीदा हो जाए, जिक्र इलाही से खौफज़दा हो जाए। जैसे इतना कहा कुरान तिलावत करने वाले ने तब तक फुजैल बिन अयाज अपनी घात से तलवार फेंकते हुए बाहर निकले और कहा कुरान तिलावत
توبہ کرنے والے ٹھہر جاؤ. وہ فضیل بن عیاض میں ہی ہوں, میرا ہی دل ہے. اب ذکر الہی سے میرا دل خوف الہی سے لرزہ براندام ہو گیا. اب میں گناہ نہیں کروں گا, گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اے قرآن پڑھنے والے ٹھہر جاؤ, میں تیرے سامنے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں, میری خطا پر گواہ ہو جاؤ. تب تک ان کے سارے ساتھی نکل آئے اور سارے ساتھیوں نے توبہ کی. وہ تاجروں کا قافلہ چلا جا رہا ہے. فضیل بن عیاض نے کہہ دیا جا کر کے اعلان کر دینا جہاں جہاں پہنچنا کہ فضیل بن عیاض نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا, اب تک کیتی نہیں کرے گا. اور جتنے لوگوں کا میں نے مال لوٹا ہے وہ سارے کے سارے لوگ آئیں اپنا مال واپس لے جائیں. اس اعلان کا پہنچنا تھا کہ فضیل بن عیاض تو رو رہے ہیں, ان کا سر سجدہ میں ہے, وہ شب و روز زار و قطار رب کی